this is Ishita, and you're watching Bollywood Adda. Firstly, it was a dream come true for me, and I was really excited, really happy that it's finally happening. And it took around 3 months of hard work, and I used to travel back and forth from Pune, and we used to do a lot of rehearsals, workshops. Anil sir took around 10 auditions and a lot of screen tests. So it was like all the hard work and all the patience just finally paid off. So I was really happy, and I was looking forward to shooting the movie. Initially talking about your journey to acting, how challenging it was, and you are quite young that is the plus point as such you have got a big break as of now. Yeah. तो क्या करेंगे कहाँ से शुरुआत हुई regarding your education, everything as such from the beginning? When we were, doing the workshops and rehearsals, Anil sir helped me a lot in, getting into character. And I used to sit and talk with Anil sir or a writer, Sunil Sarvaiya and Amjad Ali. We used to sit and talk about, discuss about the script, discuss about my character and how to get into it and, how to play the role and how to perform well. So that's how I learned everything, and Anil sir was able to mold me into the way he wanted, like the way he wanted his character, and like my character. And I was really happy, and I'm really honored that I got to work with Anil sir, and he helped me a lot throughout this. So it's been challenging, but it was fun as well. And when we were shooting the college portion, it was very easy for me since I could relate to it. And the mature part was kind of difficult because I had to act a bit, play the role of someone who's like older than my own character, and she had experienced something that I've never experienced. But Utkarsh also helped me a lot, so yeah. Not many aspiring artists, actors I'm talking about are not as successful as you are. So you must have got offers before also before the film Genius as such. Yeah, I did get a lot of offers, but it was from South industry, and I was actually more focused on my studies. So I didn't really take up any project. As a child artist, yeah, I've done a lot of advertisements and two Bollywood movies as a child artist, which was Hijack and Aapka Shuru. So after that, I just focused on my, studies and education. But then, and this is finally my first break. And film have Nawaz as USP as such a very veteran actor right now. तो Yeah. क्या कहना चाहेंगे नवाज के साथ काम करने का किस तरह से मेंटोर करते थे? How was the working equation with Nawaz as such? Actually, working with Nawaz sir and Mithunda was really honorable. Like, I was really glad that I'm like definitely lucky that in my first film I'm getting to work with such a great star cast, including Anil sir as well, who is the director, like a legendary director. And I've learned one thing, which is that Anil sir and Mithunda both are very grounded and both are very down to earth. And I think that's the secrecy to the achievements and to the what like to like that's the reason they have reached at such a level. So I would definitely keep that quality in me as well, and it was an amazing experience to work with them. They also cooperated a lot with me and Utkarsh. Like, they never made us feel like we are newcomers and we are nothing, nothing like them. They in fact helped us and motivated us in giving our best performance along with them. So yeah. Talking about the music side, music is going really great and जो गाने हैं जो भी गाने हैं यूट्यूब पे या अदर डिजिटल मीडिया पे काफ़ी चल रहे हैं. क्या कहना चाहेंगे हिमेश काफ़ी समय के बाद कम बैक किए हैं तो कितना बड़ा यूएसपी म्यूजिक पार्ट होगा? एक्चुअली सॉन्ग्स जो हैं वो हमें बहुत लाइक शूटिंग के टाइम हमें बहुत पसंद आए, एंड आई एम रियली ग्लैड दैट like people are giving the same love, and people are loving the songs as much as we do. And of course we have Himesh ji, who's like a musical genius in his own way. And also we are really glad to have amazing singers like Arjit Singh, Atif Aslam, Neeti Mohan, Jubin Nautiyal. So yeah, I'm really glad, and I'm really lucky actually to have such an amazing star cast and musicians. So yeah. Ayush being Karan Sharma's son, so what kind of length of role do you have in the film? Is that role equal or what kind of role? I would definitely say my role is very important in the movie, and even though it's a love interest of the hero, but it is very important, and you will find out why once you watch the movie. And what about the future projects you're working in? Are you working on any future projects besides Genius? Right now I'm focused on Genius, and I just hope that you watch it on 24th August. So yeah. अच्छा लग
रहा है, बढ़िया लग रहा है। लोगों को गाने पसंद आ रहे हैं। तेरा फितूर लोगों पे काफ़ी हद तक चढ़ गया है। दिल मेरी ना सुने दिल के अंदर उतर गया है। और होली के रंग में तो सब रंग गए हैं। और अभी ये नया गाना और आ रहा है, प्यार दे, वो गाना भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो टेलर पसंद आ रहा है, नया टेलर और आ रहा है परसों सोमवार को। वो टेलर भी बहुत अच्छा मुझे लगता है लोगों को लगेगा। तो आई एम हैप्पी। दो जीनियस की लड़ाई, एक जीनियस एक सुपर जीनियस नवाजुद्दीन सिद्दीकी सुपर जीनियस और जीनियस है उत्कर्ष शर्मा और नवाजुद्दीन सिद्दीकी सुपर जीनियस। इन दोनों के बीच का जो टकराव है लोगों को बड़ा मज़ा आएगा। तो उत्कर्ष ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत तो सालों पहले कर दी थी, तो इसको आप डेब्यू फिल्म मानते हैं? हाँ, आपको वो तो बच्चा था, चाइल्ड आर्टिस्ट था, वो तो यही डेब्यू। उस फिल्म में छाप छोड़ दी थी शायद उन्होंने, हाँ, तो क्या- छोड़ दी थी। वो उसका बचपन था, उसको पता भी नहीं उसने क्या किया। उसके अंदर जो एक्टर था वो अपने आप बाहर निकल आया था। एक्टर होता है अपने आप बाहर आ जाता है, उसको कहीं से लाना नहीं पड़ता। यही सोच के तो जब वो बड़ा हुआ, पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट था, जब वो बड़ा हुआ तो हमने उसको अमेरिका भेजा पूरा फिल्म की कंप्लीट एजुकेशन लेने के लिए। अमेरिका गया, वहाँ से ट्रेंड होके आया। और जब मुझे लगा कि वो इस लायक है, डायरेक्टर अनिल शर्मा को सेटिस्फाई कर सकता है, पिता अनिल शर्मा को जब ये लगा तो उसको इस फिल्म में ब्रेक दिया गया। और उसके अपोजिट एक खूबसूरत सी लड़की ढूंढी गई, इश्ता चौहान, जो कि सही लगे। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब सुपर जीनियस के रोल में लिए गए। और मिथुन दा तो एक बैकबोन की तरह इस फिल्म में आके खड़े हो गए। नहीं सर, फिल्म अगर कलर की बात करें तो आपका जो इमेज है लार्जर देन लाइफ है फिल्म बनाने का है, और मैं फिल्में बनाता हूँ वो फिल्में जो कि मुझे नहीं पता लार्जर देन लाइफ है या छोटी है। मैं फिल्में बनाता हूँ जो लोगों के लिए सिनेमेटिक एक्सपीरियंस हो। मुझे फिल्म बनाते वक्त लोगों के सिर्फ 200 रुपये दिखते हैं। आई एम टू सेल्फिश। मुझे लगता है कि मेरी डायरेक्टरशिप राइट रहनी चाहिए, क्योंकि 200 रुपया वो तभी रहेगी जब पब्लिक का 200 रुपया पब्लिक के पास पहुंचेगा, पैसा वसूल होगा। तो मेरे को फिल्म बनानी है जो फुल टू बड़ी ज़बरदस्त फिल्म हो, जिसमें सिनेमेटिक एक्सपीरियंसेस हों, बड़े बड़े ग्रेंजर हों, बड़े बड़े शॉट हों, बड़े बड़े डायलॉग हो, बढ़िया म्यूज़िक हो, पब्लिक 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा आए और मज़े लेके जाए। जो उत्कर्ष की बात करें तो मतलब अपने बेटे को डायरेक्ट करना ये आपके लिए आसान था, मुश्किल था? क्योंकि जब कोई ऐसी नहीं, अब जब एज ए डायरेक्टर आप काम करते हैं तो एज ए डायरेक्टर काम करते, इतने साल काम करके ये तो मुझे आ ही गया है। इतनी सारी लड़कियों को मैंने लॉन्च किया, तो वो भी एज ए डायरेक्टर ही लॉन्च किया। तो ये भी मेरे लिए वैसा ही था जैसे मैंने इससे पहले लड़कियां लॉन्च की या दूसरे नए कलाकार लॉन्च किए। हिमेश रेशमिया का भी म्यूजिक और काफ़ी दिनों के बाद वो कम बैक कर रहे हैं लग रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे हिमेश का म्यूजिक? बहुत ज़बरदस्त म्यूज़िक दिया है उन्होंने, जो ऑलरेडी हंगामा कर चुका है, तहलका मचा चुका है, गदर मचा चुका है। और क्या कहना, दिल की लड़ाई दिमाग से ये दिल की लड़ाई दिमाग से, दिल को भी दहलाएगी ये, दिल को भी धड़काएगी और दिमाग को भी दहलाएगी। तो 24 अगस्त का आप लोग इंतज़ार करें और जीनियस देखें और भर भर के देखें। थैंक यू वेरी मच। हाय, दिस इज़ उत्कर्ष शर्मा एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड अड्डा। जी, मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आपने गदर को बहुत प्यार दिया था, मुझे बहुत प्यार दिया था। एंड बस इस फिल्म में भी अगर आपका प्यार, आपका उत्साह और आपका आशीर्वाद मिले तो ज़रूर कामयाब होगा। अपनी एक्टिंग में आने से पहले काफ़ी मतलब पढ़ाई भी की, अमेरिका गए, वहाँ भी जी। तो हाउ वाज एक्सपीरियंस, बताइए किस तरह से देखते हैं अपने करियर को? जी, मैं जानता हूँ कि मैंने देखा है पापा के यहाँ पे इतने सारे एक्टर्स आए हैं, इतने सारे टेक्नीशियंस आए हैं। एंड इतनी छोटी इंडस्ट्री है ये कि अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई 100 एक्टर्स के नाम अभी तुरंत के तुरंत लीजिए जो करेंटली वर्क कर रहे हैं, आप नहीं ले पाएंगे एक सांस में। एंड ये बहुत ही छोटी इंडस्ट्री है, तो इसमें सफल होना सिर्फ आदमी परसिवियरेंस यानी दृढ़ निष्ठा से हो सकता है। एंड बस वही चीज़ मैंने यहाँ पे सीखी जब मैं यहाँ पे काम कर रहा था वीर में, जब पापा को असिस्ट कर रहा था कि भाई इतने लोग आते हैं क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि शायद दृढ़ निष्ठा में शायद कोशिश थोड़ी और करते तो शायद सक्सेसफुल हो जाते। तो मैं ये जानता था कि हमेशा से मुझे ज़रूर, क्योंकि मेरे फादर इस इंडस्ट्री से, एक प्लेटफॉर्म आसानी ज़रूर मिलेगी। कोई भी, किसी का भी फादर किसी इंडस्ट्री में हो, उसको प्लेटफॉर्म ज़रूर आसानी से मिलता है। बट मुझे सिर्फ रोल पाना नहीं है, मुझे वो रोल निभाना है। तो उसके लिए मुझे बहुत प्रिपेयर होके, बहुत तैयारी के साथ आना चाहिए। तो मैं अमेरिका गया, वहाँ पे पढ़ाई की, फिल्म मेकिंग सीखी, शॉर्ट फिल्में बनाई जो कई फेस्टिवल्स में गई। एंड साथ ही साथ मैंने वहाँ पे एक्टिंग भी की है, कई प्लेज़ में वहाँ पे एक्टिंग की। तो वहाँ का थोड़ा बहुत एक अलग कल्चर में मैं देखना चाहता था, अपने आप को टेस्ट करना चाहता था। तो वहाँ पे जब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं ये कर सकता हूँ, जब पापा ने भी मेरा काम देखा, उनको लगा कि कॉन्फिडेंट हैं वो मेरे लिए, तो उनको इस किरदार के लिए 17 से 23 साल का लड़का चाहिए था, तो मैं उसमें फिट बैठा। एक मैं चाहूँगा कि बीइंग फ्रॉम अ फिल्म बैकग्राउंड
जी। फादर बीइंग अ सक्सेसफुल डायरेक्टर, तो एक प्रेशर भी क्रिएट होता है क्योंकि लोग आपको उनसे कंपेयर करेंगे कि जी, जी, सक्सेसफुल जी। डायरेक्टर का बेटा है तो ये भी सक्सेसफुल, तो व्हाट काइंड ऑफ जी, पर वो डायरेक्टर हैं, मैं एक्टर बन रहा हूँ, तो मैं एक अलग पाथ पे चल रहा हूँ और मेरे को आप वैसे जज मत कीजिए कि हीरो बनने जा रहा है। भाई मैं तो कलाकार बनने जा रहा हूँ, मैं एक्टर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए एक मल्टी लेयर्ड कैरेक्टर प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपका जनता का रिव्यू उसमें बहुत मैटर करता है मेरे लिए। एंड ज़रूर थोड़ा बहुत प्रेशर रहता है क्योंकि आप एक फ़िल्मी बैकग्राउंड से, आप एक परिवार का नाम है जो आपके कंधों पे रहता है, बट आपकी ड्यूटी रहती है एज एन एक्टर कि वो सब बोझों को आप एक तरफ डालें और अपना कैरेक्टर निभाएं। तो बस मैंने वो कोशिश की है और उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छा लगे। फिल्म में आपके अलावा नवाज जैसे टैलेंटेड एक्टर हैं, जी। मिथुन जैसे मिथुन बाला जैसे वेटरन एक्टर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का अनुभव था इनके साथ काम करने का, किस तरह से गाइड या मेंटर करते थे आपको? जी, मैं हर जगह ये कहता हूँ कि मिथुन दा एंड नवाज सर के साथ काम करना एक सपना साकार हो जाने जैसा है। एंड उससे भी ज़्यादा मुझे लगता है कहीं ना कहीं पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम किए थे, इसकी वजह से ये मौका मिला। एंड नवाज सर एंड मिथुन दा दोनों ही बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, दोनों ही बहुत ही हम्बल ग्राउंडेड हैं, बट उससे भी ज़्यादा इतने टैलेंटेड हैं, इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं, पर वो कभी भी उस टैलेंट का शो ऑफ नहीं करते या कभी भी उस कला का मजाक नहीं बनने देते। वो अपनी एक रिस्पेक्ट रखते हैं एंड अपना काम, अपने कैरेक्टर में डूबे रहते हैं। जब जैसे नवाज सर की बात करूँगा तो वो हमेशा सेट पे अपने कैरेक्टर में डूबे रहते हैं। तो एज ए न्यू कमर, एज ए न्यू पर्सन आपको उनसे सीखने मिलता है कि देखिए ये इतनी मेहनत करते हैं, आज भी इतना मुकाम पा लेने के बावजूद भी इतनी मेहनत करते हैं। तो एज ए न्यू कमर आपको लगता है कि इतनी मेहनत तो हमें करनी ही है, तो इनके लेवल तक के आसपास भी आ पाएंगे। जी, हिमेश जी का म्यूज़िक इस फिल्म में बहुत बड़ा यूएसपी है। 3 साल बाद वो गाने लेके आए हैं। एक गाना नहीं लाए हैं, पूरा एल्बम लाए हैं। एंड एज ए न्यू कमर इतने बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ काम करना बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। एंड बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ मैं कि इतना अच्छा कर रहे हैं गाने। खासकर कि तेरा फितूर मैंने पान वाले की दुकान पे सुन लिया, कभी किसी दूध वाले की दुकान पे सुन लिया, रिक्शा में सुन लिया। तो जब गाने यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो आपको पता लगता है। तो असल में कोई यूट्यूब व्यूज़ से नहीं पता लगता, तब आपको असल में पता लगता है कि भाई गाना तो अच्छा जा रहा है। एंड लोगों को बाकी गाने भी जो रिलीज़ हुए हैं, दिल मेरी ना सुने एंड होली वाला गाना भी बहुत फैसिनेट कर रहा है। तो लास्टली, आपको इतनी गुड लुकिंग है, आपकी एक्ट्रेस जी, आप बहुत दयालु हैं। तो ये कहना चाहूँगा कि आप दोनों की जोड़ी काफ़ी, कास्टिंग काफ़ी अच्छी हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे आगे चल के किस तरह से देखते हैं आप अपनी जोड़ी को? जी, मुझे तो बहुत मज़ा आया इशिता जी के साथ काम करने में। एंड उम्मीद करता हूँ उनको भी आया मेरे साथ मुझे उनको भी आनंद आया मेरे साथ काम करने में। तो अगर अवसर मिला तो ज़रूर काम करूँगा उनके साथ। एंड जी, बस ऑडियंसेस को पसंद आए तो ज़रूर। एंड आर यू लुकिंग ऑन एनी अदर स्क्रिप्ट, कोई पर स्क्रिप्ट को या कुछ ऐसा है जो? जी, अभी आई एम इन टॉक्स एंड राइट नाउ मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, गुड न्यूज़ मिलेगी तो आपको अपने आप पता लग जाएगा।